میں نے کہا اماں اپنا ماننا چاہ رہا ہوں. کہتے اس دن سے لے کے 40 سال کی عمر ہو گئی میری, آج تک نماز قضا نہیں ہوئی. میری ماں مرنے والی تھی. میں نے پوچھا اماں تو نے میرا سر کیوں پھاڑا تھا؟ بچپن میں روٹی گر گئی تھی تو میری ماں نے کہا تھا میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا, تجھے نمازی بنانا فرض تھا. نمازی بنانا فرض ہے. غیر منقسم ہندوستان ہے, اور غیر منقسم ہندوستان میں توجہ کرو, غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری ہے بازید نام کے, اور ان کی بیوی ہے. اب ان کی شادی ہوئی ہے دوسری. وہ چودھری تھے, ان کے پاس 3 بیویاں, 2 بیویاں تھی, یہ تیسری شادی تھی. اب انہیں میاں تیسری بیوی جب آئی تو کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, تو ان کو تیسری بیوی ٹھیک ملی. جب تیسری بیوی ٹھیک ملی تو اس نے دیکھا کہ 100 نوکر ہے چودھری کے پاس, اور زمین جائیداد بھی بہت ہے, مگر چودھری کو اگر کچھ میسر نہیں ہے تو نہ کوئی نوکر نماز پڑھے, نہ کوئی بچہ نماز پڑھے, نہ چودھری نماز پڑھے. اس نے گھر میں آتے ہی سوچا کہ چودھری کو نمازی کیسے بنانا ہے. تو اس نے سوچا کیسے بنانا ہے, تو اس نے یہ کیا کہ چودھری سے جو ہے نا, اس نے دیکھا کہ چودھری کو دودھ لے کے جاتا ہے شام کو نوکر, تو نوکر سے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے, میں دودھ لے کے جاؤں گی. وہ دودھ لے کر کے گئی, اور جب چودھری نے دیکھا تو کہا میری 2 بیویاں تو پہلے بھی ہیں, وہ تو کبھی جو ہے وہ دودھ لے کے نہیں آئی, آپ کیوں لے کے آئی ہیں؟ کہنے لگی میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کا, آپ میرے شوہر ہیں. اس نے جو ہے نا اس کو دودھ پیش کر دیا, دودھ پی لیا اس نے. وہ پھر کہنے لگی حضور میں آپ کے طرف پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں, اگر اجازت دے تو پاؤں دبا دوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ پاؤں دباتی رہی. چودھری کو نیند آنے لگی, رات کا وقت ہے. جب چودھری کی آنکھیں مچنے لگی تو کہنے لگی حضور آپ تو سو رہے ہیں اور میں جا رہی ہوں, میں بھی سونے کے لیے, اگر اجازت دے تو تمہیں فجر کے وقت اٹھا دوں. اب تو ایک تو چودھری دوسرا مرد, دو علامات تکبر کی. تو مجھے سمجھائے گی بھاگ یہاں سے, دھکا مار دیا, چلی گئی. مگر دوسرے دن نہیں آتی آج کے زمانے کی, اگر کتنی بھی نیک ہوتی, میں کیوں جاؤں, مگر دوسرے دن بھی آئی. دودھ کا پیالہ دے کے بولی چودھری صاحب لیجئے دودھ پی لیجئے. اس نے چودھری سے دودھ لیا, اور دودھ لینے کے بعد چودھری نے کہا پھر تم کو اس نماز کے لیے کہو گی, کہا چھوڑو نا میں دیکھتی ہوں آپ دودھ پیجئے. اس نے دودھ پیا, اس کے بعد پاؤں دبانا اچھا جانتی تھی, چونکہ میکے میں ابا کے پاؤں دباتی تھی. اب شوہر کے دباتی رہی. چودھری صاحب نے پھر جو ہے نا اس کے چودھری صاحب کو نیند آنے لگی. کہنے لگی چودھری آپ کو نیند آ رہی ہے, اگر اجازت ہے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں. چودھری نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, ایسی لات ماری, اونچا پلنگ تھا, نیچے گری, منہ کے بل گری. اچانک چکے اس کا پتہ نہیں تھا یہ لات مار دے گا, نیچے گری اور منہ کے اندر سے خون گرنے لگا. اور اس نے اپنا بٹن اٹھایا, ایک لفظ بھی نہیں کہا, یہ بھی نہیں کہا میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں, تو مجھے مار رہا ہے, بلکہ وہ روتی بھی چلی گئی. اور اس کے بعد پھر آتی رہی, پٹتی رہی, گالیاں کھاتی رہی. کئی ہفتے گزر گئے. کئی ہفتوں کے بعد چودھری بولا روز گالی دیتا ہوں, روز تجھے بھگاتا ہوں, یہ روز تو کیوں آتی ہے مجھ سے کہنے کے لیے؟ تیرا باپ اچھا خاصا چودھری ہے, تیرے بھائیوں کے پاس بڑی زمینیں ہیں, مجھ سے بڑا چودھری تیرا باپ ہے, یہ تو مجھ سے نماز کے لیے روز کیوں کہتی ہے؟ تو کہنے لگی چودھری بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. کیا مطلب؟ کہ بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو حضور فرماتے بے نمازی جب مرے گا اس کو اتنی پیاس لگے گی اگر پوری دنیا کا سمندر کا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے, اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اے چودھری سنو, غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. اللہ اکبر, ذرا توجہ کرو. وہ عورت کہنے لگی چودھری آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو میری آنے والی نسلیں بے نمازی ہو جائیں گی, اور میں یہ گوارا نہیں کر سکتی میرے بچے بھی بے نمازی بنے, اور جب وہ بے نمازی بن کے جہنم میں جائیں گے تو کوئی ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ یہ کہہ کے رونے لگی چودھری اسی وجہ سے آتی ہوں, تیری گالیاں سہتی ہوں کہ تو نمازی بن جائے. چودھری کے دل کا جو میل تھا وہ دھل گیا. بولا صبح کو تو مجھے مت اٹھانا, میں تجھ کو صبح کو اٹھاؤں گا. صبح کو چودھری نے اس کو اٹھا دیا. چودھری نے صبح کو اٹھایا, اور جب وہ دونوں سجدے میں گئے اس نے وضو کر کے لڑکی نے رونا شروع کر دیا, اور پھر اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کے کہتی ہے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, میں کمزور عورت ہوں, تو طاقتور پروردگار ہے. اے میرے مالک میں دل نہیں بدل سکتی, دیکھ میں کتنی بڑی پٹی ہوں, مجھے اتنے بہت بہت برا
जो पीती है, वो जो सोती है, वो जो टेंशन है, उसको जितनी भी तकलीफ है, यानी अब इन बच्चों पे रिसर्च हुआ, ये पागल कौन बच्चे होके पैदा होते हैं, माँ के पेट से पैदाइशी पागल, ये जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ये तवाज़ुन जिनका बिगड़ा होता है, ये कौन बच्चे हैं? इन पर रिसर्च हुआ 25 साल हार्वर्ड ने किया और उन्होंने कहा ये वो बच्चे होते हैं 80% के जो अपनी माँ के पेट में थे, बाप ने माँ को मारा, प्रेग्नेंट मूवमेंट में मारा, यानी हालत हमल में जब बीबी हामला थी आदमी ने मारा। उस जाहिल को ये नहीं पता कि वो अपनी बीबी पे हाथ नहीं उठा रहा है, अपने बीबी के पेट के बच्चे पर, अपनी नस्ल पर हाथ उठा रहा है। अब जब बच्चे को उसने बीबी को मारा तो बच्चे के दिमाग का तवज्जुह खत्म हो गया। अब कलकत्ता दिखाता फिर, या पटना दिखाता फिर, या दिल्ली दिखाता फिर, अब तेरे अपने किए का कोई इलाज नहीं है। अब मुझे तवज्जो करके बताओ, औरत जब प्रेग्नेंट वुमेन में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है अगर ये चाहती हो बच्चे के अंदर आयरन हो, बच्चा ज्यादा मजबूत पैदा हो, तो ज्यादा जो है वो अमरूद खाना, ज्यादा अनार खाना, ज्यादा संतरा खाना, ज्यादा अगर ज्यादा सेब खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, ज्यादा बादाम खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, अगर अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेगा, अगर अमरूद खाओगी संतरा खाओगी तो विटामिन सी बढ़ेगा। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? पीछे वाले बोले, जरा पीछे वाले बोले होगा, दोनों हाथ उठा के बोले होगा कि असर नहीं होगा? बोले होगा कि नहीं असर होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बच्चा देखे, आप देखिए बच्चा पैदा हुआ है, ये दिल्ली के करीब में एक जगह बच्चा पैदा हुआ, तीनों लगा 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 1 महीने लगातार तसलसल के साथ रोया। उसे हकीमों को दिखाया मगर ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद जब उसके उस घर के करीब से गुजरे हजरत फखरुद्दीन फाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद, उन्होंने जब बच्चे को रोते सुना तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा, अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। कहा कैसे? कहा आओ दिखाता हूँ। वो पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, कोई है? बाप निकल के, आपका बच्चा रो रहा है? कहा आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है ना, ये सोया है ना सोने दिया है, लगातार रो रहा है, वली है। कल आओ मेरी गोद में ला के दो। गोद में दिया, बच्चे के कान में कुछ पढ़ के फूंका, बच्चा खामोश हो गया। बाप बोला क्या पढ़ के फूंक दिया? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ कि इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये माँ के पेट में था ना बच्चा, तो माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते इतना कुरान पढ़ा कि इस बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत पड़ गई। इसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कुरान बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ चचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। बच्चे को भूख लगी थी कुरान की, तुम दवाइयाँ खिलाते थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन अली शाह कलंदर पानी पड़ी है। इसको सनद दे दो कि भाई आप वाकई में गुलाम हैं। अरे अगर माए इजाजत न देती बहने तो जाते मदीने के लोग। अरे वो कौन थे मियां? उन सहाबा किराम का कोई जिक्र भी करता है? नहीं करता है। वो कौन थे जो मदीने से गए मगर वापस कभी हैं? 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं, पता नहीं वो कहां दफन है। एक एक कब्र में 60-60 लाशें दफन हुई। कौन थे वो लोग? कहां गए उनके चर्चे? सबका जिक्र जरूरी है मगर सहाबा का सबसे ज्यादा है इन जलसों पर। बोलो तो सदा, बोलो तो सही, सहाबा का बोलो, हक है कि नहीं? बोलो हक है कि नहीं? जरा तवज्जो करो। अगर सहाबा किराम नहीं जाते, इधर देखो सहाबा किराम निकल रहे हैं, मगर इधर देखो जो मक्के की औरतें थी जो ना, मक्के की औरतों ने अपने जब जेवर दिए थे और कहा था मेरी बहनें मेरी बेटियां सुन ले, और जब जेवरात उतार के दिए थे, अपने कंगन अपने हार उतार के दिए थे और कहा था ले अबू जहल ये हमारा माल ले जा और नबी के दीन को जो है वो खत्म कर दे। तो मदीने की औरतें आई थी, या रसूल अल्लाह हमारे पास माल तो नहीं है मगर 18 साल का लाल मौजूद है, इसे ले जाइए और दीन को बचा लीजिए। उठाए एक बार मोहब्बत से सहाबाए किराम के नाम पर जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। सहाबा
कर रहा था जब मेरे नबी ने फरमाया कौन कौन मेरे साथ चलेगा, चलो मेरे साथ कौन कौन चलेगा, चलो मेरे साथ कौन कौन चलेगा, तो मदीने में लाइन लग गई और मियाँ अपने जवान जवान करियर करियर जब पले हुए जवानों को लेकर के औरतें आ रही हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह इसको ले लीजिए, अपने शौहर को लेकर बीबी आ रही है, अपने बेटे को लेकर के माँ आ रही है, बहन अपने भाई को लेकर आ रही है, और पूरे दिन तांता बंधा रहा। एक औरत भी सारी औरतें लेके आई, एक औरत ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे शौहर का ख्याल रखना, या मेरे भाई का। सारी औरतें यही कहती थी या रसूल अल्लाह जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की माँ कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की बेटी कहलाऊं। बोलो तो शहीद की, जल्दी बोलो शहीद की, जोर से बोलो ना, शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की माँ कहलाऊं। इधर देखो मियाँ, अब जरा गौर करो, वही तो उन्हीं के तो लड़के थे जिनके बारे में इकबाल कहता है अपना सकते थे अगर जंग में लड़ जाते थे तो वो शेरों के भी मैदान से उगड़ जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, एक चीज ही कि हम तो उससे लड़ जाते थे, दस्ते दस्ते दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुर्मा पे दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के टहते हुए सहराओं में, शान नजरों में नजस्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छाओं में तलवारों की, आगे ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज कबलारू होके जमी बोझ हुई कौम हिजा, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा रहा, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, और तू ही कह दे कि उखाड़ा तारे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने। मेरे नबी फरमाने अपने अपने लेकर के आए, मियाँ पूरे दिन ताता बांधा रहा, मगर रात के वक्त में एक मुसल्ला बिछा हुआ है और एक औरत रो रही है, उसका नाम जो है ना खंसा है, कभी विकिपीडिया पे डाल के देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा गुजरी है, वो अरब दौरे जहालत की, उसका नाम खंसा है, अरबी की बहुत बड़ी शायरा थी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सहाबिया थी, वो रात में रो रही है अपना मुसल्ला बिछाकर, जब वो मुसल्ला बिछा करके रो रही है तो बच्चों करे, जब वो मुसल्ला बिछा करके रो रही है तो उसके दोनों बच्चे उठते हैं, एक की उम्र तकरीबन 11 साल, एक की 13 साल है, दोनों अपनी माँ के करीब आ जाते हैं और आके कहते हैं अम्मी जान आप रोती क्यों है। माँ सलाम फेरने के बाद कहती है आपको बताने की बात नहीं है मेरे बेटे, बस मैं अपनी महरूमी पे रो रही हूँ। अम्मा जान बताना क्यों रो रही है, बस बेटे मैं अपनी महरूमी पे रो रही हूँ। क्या बात है, बात ये है मेरे बेटे, मेरे लाडले आपको बताने की बात नहीं है। कहा अम्मा बता, माँ ने बच्चों ने अपनी माँ के आंसू पोंछे तो माँ और ज्यादा रोई, और माँ से बच्चे कहने लगे बताना, कहने लगी सारी औरतों ने अपने जवान जवान बच्चे हुजूर की बारगाह में पेश कर दिए, मगर तुम्हारी उम्र चूंकि अभी कम है, इस वजह से मेरे लाडलो मेरा दिल करता था मैं तुम्हें लेके जाऊं, मगर तुम्हारी उम्र कम है। बच्चों ने आज देखा ना कहो अंदर गए, छोटी छोटी शमशीरें जिनसे वो रियाज करते थे लेकर के आए, कहने लगे अम्मी जान तू कैसी बातें करती हो, लेके तो चलो, मैं नबी के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं पैगंबर के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। छोटे छोटे बच्चों से माँ ने कहा बेटे अभी तुम छोटे हो, अम्मा तू लेके तो चल, तेरी तरबियत पे हर्फ नहीं आने देंगे, लेके चल। मैं उस खंसा हुजूर की बारगाह में बच्चों को लेके जाती है, मेरे नबी पाक ने दोनों बच्चों को देखा, खंसा कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे हाजिर हैं, इनको अपनी गुलामी में कबूल कर लीजिए। नबी फरमाते हैं खंसा तेरे बच्चों की उम्र कम है, तो बड़े वाले ने तलवार चला के दिखाई, सरकार ने फरमाया ठीक है बड़ा वाला तो चला जाएगा, मगर ये छोटा वाला अभी बहुत छोटा है, तो वो 11 साल वाला अपने पंजों के बल खड़ा होने लगा और कहने लगा हुजूर मुझे लेकर के चले। नबी ने फरमाया अभी आप छोटे हैं, कहा मेरी कुश्ती करा दीजिए आप मेरे भाई से, हुजूर आप मेरी कुश्ती करा दीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया ठीक है। अब तो जब कुश्ती करने के लिए आगे बढ़ा, अपने भाई के हाथ पकड़ के बोला देख तू मेरा सगा भाई है, मेरे बेटे मेरे भाई मेरी बात सुन, अगर तू मुझे गिरा देगा तो तू जीत तो जाएगा मगर तुझसे अल्लाह नाराज हो जाएगा। देख हम दोनों मोहब्बत हुजूर से करते हैं, मेरे भाई मुझको गिराना नहीं वरना तुझसे अल्लाह नाराज हो जाएगा, तू गिर जा तुझसे अल्लाह राजी हो जाएगा। देख मुझे लेके चल, मैं अगर अकेला तू शहीद होगा तो अम्मी इतनी खुश नहीं होगी, अम्मी जान जितने दोनों की लाशें आएंगी तो खुश होंगी। जब वो बच्चे रोए तो मेरे नबी ने उस छोटे से बच्चे को प्यार किया और फरमाया मेरे आका ने अल्लाह के रसूल ने दोनों को कुश्ती नहीं करने दी और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माँ दुनिया में है इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता है, कोई बाल भी का नहीं कर सकता है। मेरे पैगम्बर ने फरमाया उसके बाद खंसा ने अपने बच्चों को प्यार किया, तो जो गंदा बोला जोर से बोलो सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोलो जोर से सुभान अल्लाह। बच्चों ने मैंने अपने बच्चों को देखा और देखने के बात कहा मेरे लाडलो मेरा शौहर बहुत दिन पहले, तुम्हारा बाप बहुत दिन पहले दुनिया से चला गया, मैंने मजदूरियां कर करके बच्चे तुम्हें पाला है, मेरे लाडलो मैंने नौकरियां की है, मगर मेरे बेटो
तुम्हारी वापसी का मेरे लाडलो मगर इतना ख्याल रखना, जब जंग में बची और पाले और तलवारें चले और जब तुम्हारे आकर के तलवारें लगे तो ख्याल रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर कोई जख्म ना आए, ताकि लोग देख के तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती बल्कि शेर दिल पैदा करती है। ने रोक लिया तो मैं माँ कामयाब हो जाऊंगी, मेरे पास कोई दूसरा बच्चा नहीं है। मेरे नबी ने बच्चे को उठा के प्यार किया और फरमाया कि तेरी नीयत इतनी अच्छी है कि तेरा बच्चा शहीद भी नहीं होगा, फिर भी अल्लाह तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मैं अपने बच्चे को 3 साल के लेके आ रही है हुजूर, बच्चा आपके तीर लगे तलवार तो मेरे बच्चे से रोक दीजिएगा। ये बच्चा अगर शहीद हो गया, आज मैं अपने बच्चे को नमाज तक में भेजने के लिए तैयार नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाने तक के लिए तैयार नहीं, अपने बच्चों